Hello everyone. We will start. We'll begin in just few minutes. Let everyone join. Yes, good morning everyone. Okay, so hi everyone. So we have been doing the modules in the last class talking about 18.1. The homework questions did you all go through? Because we were supposed to complete this 18.1 today. Everyone has done. Everyone did 18.1 homework module. We will discuss that first and then we will move ahead to the Ampere's law because we already completed Biot-Savart's law. Everyone, let me know you all have done the modules, the homework part. Okay, I can see most of you have done it. Almost 90% of you have done it. So we will discuss those modules. जो नहीं किए हैं, they will attempt them.
जो नहीं किए हैं वो लोग अटेम्प्ट करेंगे. एंड व्हाट डाउट्स यू हैव इन द होमवर्क सेक्शन, बिकॉज क्लास वर्क तो हमने कर लिया था. Samarth, if you haven't done, attempt it. Attempt it and let me know the doubts in the next session. जिनका हो गया है, अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जो लास्ट 5-6 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो ठीक है. Let us discuss this modules in the next class. Today we will start with Ampere's law. So we will continue with the usage of Biot-Savart's law first, and then we will do Ampere's law. Okay, but by next class, everyone should finish 18.1. Okay, so in Biot-Savart's law, we have talked about the magnetic field due to current element, and what was that? dB is equal to K ideal sine theta by r square. We have also used this Biot-Savart's law to get the magnetic field due to a straight finite wire sine phi 1 plus sine phi 2. So today we will see the magnetic field due to circular wire. The magnetic field due to circular wire, we will find out. So first let us say we have a circular wire here, and if I want to get the direction of magnetic field line at any point inside, could you all tell me what will be the direction of magnetic field at any point inside, provided that considering this loop lies on the plane of this computer screen? क्या डायरेक्शन होगा इस पे मैग्नेटिक फील्ड का? At the center the direction will be, ठीक है, परपेंडिकुलर टू स्क्रीन होगा, बट इट विल गो, लेट अस से आई गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. लेट अस से ये डायरेक्शन दे दिया एंटी क्लॉकवाइज. तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड हो जाएगा. इट विल बी perpendicular to this plane containing this loop, and क्या ये आउटवर्ड होगा? देखो ध्यान से, आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजन इनसाइड. वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल, सो इट विल बी इनटू किसी पॉइंट पे इफ यू प्लेस द थंब एंड यू विल सी द कर्ल्ड फिंगर्स गोइंग इनसाइड. तो अंदर का जो रीजन होगा उस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर मिल गया? हर पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे. इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन ये ले लो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर. इस पॉइंट पे ले लो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर. सो वी आर सीइंग दैट ड्यू टू ऑल दीज करंट एलिमेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन. So let us say I amount of current is flowing, and let's say the radius is r. So what will be the magnetic field at the center of the circular wire? Center पे बात कर रहे हैं, at the center, due to the complete circular wire carrying current. तो एक करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? के आई, लेट अस से इसका लेंथ है dl बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट से टू द पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो है r sin theta. What will be angle theta? Theta was the angle between dl vector and r vector, जो कि देखो 90 डिग्री है, because dl vector is along the tangential direction and sin 90 is 1. Okay, so this is small magnetic field due to small current element.
So if we want to find out the total magnetic field, so what we will do, we'll just integrate both the sides. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज बी. बाकी ये सारी चीजें देखो तो ये कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएंगे, के आई बाय आर स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज 2 पाई आर. तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, ये आर कैंसिल, 2 पाई के आई बाय आर. इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ के एज, क्या होता है के का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई. अगर मैं यहाँ रख दिया तो ये बनेगा 2 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर. तो ये हो जाएगा हमें म्यू नॉट आई बाय 2 आर, right? So this is the magnetic field that we have got due to a complete loop of wire having radius r. Okay, now we can even improvise this. Magnetic field हमारा है mu naught I by 2r, and this is due to one loop which is a complete loop. तो वैसे ही अगर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर वायर हैविंग रेडियस r, तो उसमें क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r, राइट. हाफ हो जाएगा इसका. बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग, हर पॉइंट, हर करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहे थे क्योंकि उनके डायरेक्शन सेम थे. तो यहाँ पे आधा ही लूप कंसिडर किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा हाफ होगा. इज दिस अंडरस्टूड हाउ वी विल गेट हियर म्यू नॉट आई बाय 4r. Okay, and this is just the magnitude that we have found due to a complete loop and due to a semicircular wire. Direction we will find using right hand thumb rule by considering any current element. So in the same manner, let us suppose I have a quarter of a loop. Exactly, this is the quarter of a loop, and I want to find the magnetic field at this point. Remember, at this point only I can get by improvising this forms. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर रेडियस r है तो, yes, this is for the point inside the loop, right, inside the loop. And inside the loop कौन सा point, point is at the center of the loop. तभी हमने इंटीग्रेशन से r कांस्टेंट करके बाहर निकाले हैं. Outside the loop what point you want to find? Outside the loop it is not symmetrical, it is impossible to find. हर पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग होंगे, तो निकाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ पे फिर सर्कल के इक्वेशन कंसिडर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल find this distance and we will integrate. This is a much complex thing, we are not going to have this at the present level. Okay, बस हमें देखना है सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर या फिर कोई एक सेक्शन जिसका कि एंगल थीटा हो. So let's say I have a segment of the loop जिसका रेडियस r है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कंप्लीट सर्कल का 1/4, so म्यू नॉट आई बाय 8r, राइट, बिकॉज दिस इज जस्ट 1/4 ऑफ अ सर्कल. इस सेक्शन के वजह से क्या होगा, तो फिर इसी को कंसीडर करेंगे. ये 2 पाई एंगल जब होता था तो हमारा होता था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r. 1 रेडियन जब एंगल होगा तो होगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/2 पाई. तो जब एंगल सेंटर पे हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई. So if we just remember this general expression of magnetic field with respect to what angle is made at the center, this is just enough to talk about the loop, semicircle, quarter or even any section. So I don't think you all have doubt in this because this is very simple. हमने बस loop का magnetic field निकाला and we have just improvised depending on how much section is with us and we found the magnetic field accordingly.
आउटसाइड आउटसाइड द लूप की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लाइक मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द लूप, और वो एक्सिस लेट अस सपोज जैसे ये है लूप, कैसे लिया है लूप को हमने, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। इस सेंटर से जो लाइन होगा ये एक्सिस कहलाएगा, इस लाइन पे at any distance x we have to find the magnetic field. Just the same manner you found the electric field on the axis of loop containing charges distributed throughout, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट वी विल डिटरमाइन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज not symmetrical, especially when we talk about functional curves. स्ट्रेट लाइन से तो किसी पॉइंट पे हमने निकाल लिया, बहुत ही नॉर्मल इंटीग्रेशन होता था। फंक्शनल कर्व से भी हो जाएंगे, बट दिस इज मोर ऑफ द पीएचडी लेवल, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस नाउ। वी विल जस्ट टॉक अबाउट पॉइंट इनसाइड। इनसाइड में भी कौन सा पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द लूप। आउटसाइड में अगर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस, नॉट इवन दिस पॉइंट। ये देखो सर्कल अगर इस लूप में है तो ये एक्सिस नहीं कहलाएगा। यहाँ सर्कल अगर इस लूप में है तो एक्सिस कहाँ होगा, इस पॉइंट से जो लाइन पास करेगा परपेंडिकुलर टू दिस, वो एक्सिस कहलाएगा। ओके, लेट अस डू अ स्मॉल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। तो अभी तक के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस वन एंड दिस वन, म्यू नॉट आई बाई 2r। दिस शुड बी लर्न बाय हार्ट बिकॉज देर आर क्वेश्चंस जिसमें कि हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे। सो लेट्स से जैसे कोई एक लूप ले लिया, एक और लूप ले लिया, इनमें करंट लेट अस से कि इसमें I1 फ्लो हो रहा है और इसमें I2 फ्लो हो रहा है, और इनके रेडियस हमें पता है, आउटर रेडियस बाहर का जो है वो लेट अस सपोज चलो ले लेते हैं ये R1 और ये हो जाता है R2। सो यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, not more than 30 seconds because this is a very direct question. The GIF doesn't works here. It works in most of the whiteboards. Okay, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इस केस में क्या आएगा, वेरी सिंपल, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, सर्कल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2r और 4r, 2r राइट, सेमी सर्कल के वजह से 4r, क्वार्टर के वजह से 8r, तो म्यू नॉट आई बाय 2r। तो आउटर लूप के वजह से अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट ओ पे क्या होगा, into the plane, right? Just apply right hand thumb rule. The direction where you are able to curl all rest of the fingers, that is the direction of magnetic field. इनर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होंगे, आउटसाइड, राइट। मतलब कि I2 करंट जहां से फ्लो हो रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट हुआ, I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन हुआ, तो ओवरऑल जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। इनटू द प्लेन क्यों होगा,
मैग्नेटिक फील्ड वायर से जितने दूर जाएंगे वहां से डिक्रीज होगा, राइट? मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। तो दोनों में से हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा है, I1 के वजह से ज्यादा है या I2 के वजह से ज्यादा है? दैट्स राइट, इट डिपेंड्स ऑन I1 एंड I2, बिकॉज यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड I और R दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना? तो लेट अस सपोज वायर 1 के वजह से, जैसे कि I1 बाय R1 मैं कह दिया इज ग्रेटर देन I2 बाय R2, तो ऑफ कोर्स इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ये कंडीशन होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर डायरेक्शन भी बता पाएंगे। एल्स वी कैन जस्ट से द मैग्नीट्यूड एंड दैट आल्सो अ रफ आइडिया ऑफ द मैग्नीट्यूड। Unless and until we do not put mod, our answer will not be correct if this is not given. तो अगर ये दिया है तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इनवर्ड होगा। इनवर्ड में क्या होगा, म्यू नॉट बाय 2 I1 बाय R1 माइनस I2 बाय R2, राइट? ये होगा। लेट अस सपोज इसी में मैंने करंट्स को इक्वल कर दिया, आई और यहाँ से भी आई करंट इक्वल हो रहा है, फिर ये कंडीशन की जरूरत नहीं है। देन यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, क्योंकि आई कांस्टेंट है, म्यू नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो इफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अब होगा वो कम होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन म्यू नॉट आई बाई टू 1/R2 माइनस 1/R1 होगा, राइट? Okay, it not only depends on I, it depends on I and the distance R. Okay, so we have one more question based on semicircle. ये दो सेमी सर्कल ले लिया, ये स्ट्रेट वायर है, so you can neglect the magnetic field due to this section. So let us suppose the EMF of this cell is V and the total resistance of wire, let's say it is R ohm. So here you have to find the magnetic field at this point, given this is R1 and this is R2. Find magnetic field at O again. Magnetic field at O you have to find out. So everyone will find it out.
Yes, we will check it. So let everyone attempt. ओके, लेट अस सी। तो पहले तो करंट क्या हो जाएगा, V बाय R। इन दो सेक्शन ऑफ वायर्स के वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। रीजन इज दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस वायर, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता था। मैग्नेटिक फील्ड वायर के रेस्पेक्ट में उनके अराउंड होंगे, राइट। बट यस, इन दो सेमी सर्कल्स के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो एक सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4R। दूसरे के वजह से म्यू नॉट आई बाय, अच्छा करंट तो करंट सारे वायर्स में सेम है, तो करंट सेम हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4। अब बात है कि 1/R1 होगा या 1/R2 होगा। तो इस वायर के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट, इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ वो आउट ज्यादा हो रहा है, बिकॉज आर जिसका कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, राइट, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्रोवाइडेड दैट करंट हियर इज कांस्टेंट। तो यहाँ हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 एंड आई विल बी V बाय R। क्या ये मिला है सभी को? म्यू नॉट V by 4R 1/R1 minus 1/R2. Okay, yes, Mohammed. You gave me the answer first, so that is correct. Yes, Abhiram. You gave right at the time I asked.
I can see Abhiram also gave right at the time we started with this question. Okay, next question. So quickly now you have to find the magnetic field at point O, assuming that current कितना flow हो रहा है, let's say इस बार I ले लेते हैं, जल्दी जल्दी बस ये निकाल लेते हैं, ये भी current I flow होगा, and let us say this is A and this is B. Magnetic field at point O you have to find out. Angle, yes, angle has to be given. मान लेते हैं एंगल थीटा है, एक जनरल फॉर्मूला हमें निकालना है, जनरल फॉर्म. Just assume that angle is in terms of theta variable. Ki theta 1 by A minus 1 by B. चलो ये आंसर मिला मुझे, तो देखते हैं, लेट अस सी दिस इज करेक्ट और नॉट. तो इन दोनों सेक्शन के वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होंगे, ये दो सेक्शन जो है इनके वजह से कोई नहीं होगा, बिकॉज अगेन दिस पॉइंट इज अलोंग द एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू वायर्स. तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड. इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनसाइड. तो आउटसाइड जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि करंट सेम है, फिर से डिस्टेंस इनवर्स रेशियो. सो म्यू नॉट आई बाय 4, और ये होगा ए थीटा बाय 2 पाई माइनस, अच्छा ये सारी चीज कॉमन हो जाएंगे, इंटू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी. तो अगर के टर्म्स में देखें तो 4 पाई और म्यू नॉट, चलो ये के होता है के आई थीटा बाय 2 इंटू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, 2 पाई, राइट राइट, दिस विल बी 2 पाई, तो ये 4 हो जाएगा, राइट, बिकॉज हियर वी कंसिडर म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू थीटा बाय 2 पाई. ओके यस, सो हियर वी गेट, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 4 पाई हो गया, और म्यू नॉट बाय 4 पाई ये हो गया हमारा के. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. और नेट डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, आउटसाइड, राइट, क्योंकि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग है. अच्छा, अगर इसका ग्राफ बनाए हम, एक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये क्या होता था, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, राइट. अब let us say if I talk about a situation in which the loop is expanding, तो एक्सपैंड हो रहा है मतलब उसका रेडियस चेंज हो रहा है. तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे कम कम होता जाएगा, राइट. सो इफ वी ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर, तो वो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, राइट, डिक्रीजिंग कर्व इट विल बी. अच्छा, और अगर ये श्रिंक होगा, इफ द लूप इज श्रिंकिंग, लूप जब श्रिंक होगा तो वो केस क्या होगा, आर डिक्रीज होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा. सो दिस बोथ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ, it gives us idea about when the loop is shrinking or expanding, what is the plot of magnetic field versus radius.
ओके, सो लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन जिसमें कि हम कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ मान लिया एक ऐसा वायर है हमारे पास, एक और वायर है यहाँ पर, और ये दो वायर कनेक्टेड हैं ऐसे। एंड लेट अस से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और ये इंफिनिटी पे एक्सटेंड हो रहा है और ये भी इंफिनिटी पे एक्सटेंड हो रहा है। तो डेफिनेटली both are semicircular wire if observed from top left corner. So we will find the magnetic field at the center of this semicircular loop. So you have to find the magnetic field. ये कौन सा point है, central point है, and let us say this distance, let's say the radius is a ले लिया या r ले लिया radius. So find out the magnetic field at this point indicated. चलो एक आंसर मिला मुझे। रोहित सेज म्यू नॉट आई बाय 4r. समझ सेज म्यू नॉट आई बाय 4r इंटू 1 + 1/π। ये थोड़ा अनअरेंज्ड एक्सप्रेशन लग रहा है समझ। लुक एट इट, 1 + 1/π, ये थोड़ा अनअरेंज्ड लग रहा है। मे बी हो सकता है, आई हैवंट डिटरमाइंड द आंसर, वी विल सी इट्स आंसर। क्योंकि पहले हम क्वेश्चंस देख रहे हैं बेसिक्स जो माइंड में आ रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड पहले वो करेंगे, फिर हम जब मॉड्यूल डिस्कस करेंगे देन वील हैव प्रॉपर आंसर। तो हम डायरेक्ट आंसर कंपेयर करके भी आगे जा सकते हैं। तो पहली चीज इसमें, इस वायर के वजह से क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर? आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज अगेन लाइंग ऑन द एक्सिस। तो इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मतलब ये बेकार दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होगा? एक तो ये सेमी सर्कुलर वायर के वजह से, और एक स्ट्रेट इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा? वी विल जस्ट यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली। सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई बाय 4πr। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा? इनटू, सेमी इनफाइनाइट नहीं, ये इसके वजह से सेमी सर्कुलर, पहले सेमी सर्कुलर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4a। तो म्यू नॉट आई बाय 4a मतलब r, रेडियस। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये भी इनटू द प्लेन होगा, राइट? we'll again use right hand thumb rule, it will get into the plane। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता था? म्यू नॉट आई बाय 4πr, राइट? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4r कॉमन ले लिया, 1 + 1/π। ओके, दिस आंसर इज करेक्ट। चलो एक बार लेट अस सी। मोहम्मद सेज म्यू नॉट आई बाय 4π इंटू 1 + π। तो इसमें से क्या करेंगे हम? अगर पाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाय 4, पाई अगर कॉमन ले लिया यहाँ से, मतलब पाई को अंदर अगर ले लिया ये वाला को, तो ये हो जाएगा 1 + 1/π। सो सेम एक्सप्रेशन, राइट? सो योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये हम क्या कर रहे हैं? बस अरेंज कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन जस्ट इट्स यूजेज।
अभिराम 1/r+π कैसे होगा? आर तो दोनों में इन्वॉल्व है ना, तो वो तो कॉमन हो जाएगा। आर दोनों में इन्वॉल्व है ना, वो कॉमन आके बाहर आ जाएगा। μ0I/4r जस्ट नॉर्मल एडिशन। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने कैसे डिटरमाइन किया? सबसे पहले जस्ट मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया। सेमी इनफाइनाइट के वजह से क्या होता था? μ0I/4πr। सेमी सर्कुलर के वजह से क्या है? μ0I/4r। दोनों को ऐड करेंगे तो μ0I/4r कॉमन होगा, तो यहाँ भी μ0I/4r कॉमन हुआ, तो बचा सिर्फ 1/π। तो 1+1/π कॉमन हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया ये? Yes, Rohit, you can tell me your doubt. I'm not able to comprehend. No, sir, cleared. Okay. चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। लेट अस से कि मैं इसको ऐसे बना दे, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, और इस पॉइंट से ऐसे करके, मतलब सेमी सर्कुलर टाइप का। सो लेट्स से दिस इज ए करंट, फिर से आई फ्लो हो रहा है। यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ। सो क्विकली वी विल डू। और ये दोनों जो वायर हैं, ये दोनों इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहे हैं। These all are tending towards infinite. So you have to find magnetic field at O. Samarth, angle 90 degree, of course, yeah, this is 90 degree, you can assume. क्योंकि ये देखो, ये 90 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री होगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड अभी जो होंगे वो तीनों वायर के वजह से होंगे, द नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट अस सपोज मैं इस वायर को बना दिया वायर 1, इस सेक्शन को मैं बना दिया वायर 2, और ये सेक्शन हो गया वायर 3। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा, that will be due to magnetic field B1, B2, B3, and we will get the answer by vector addition। तो पहले वायर 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू वायर 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू वायर 3 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ऐड करेंगे। तो B1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा? μ0I/4πa, राइट। इसके वजह से भी वही होगा, तो वो इंटू 2 हो जाएगा। सेमी सर्कुलर नहीं, दिस इज जस्ट अ क्वार्टर। क्वार्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा? μ0I/4 8a, राइट, μ0I/8a।
बिकॉज दिस इज जस्ट अ क्वार्टर। तो अब अगर ऐड कर दें या फिर ऐसे भी छोड़ देंगे, विल गेट म्यू नॉट, ये 2 हो जाएगा। सो म्यू नॉट आई बाय 2a, ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/5। okay, this is correct. This is the net magnetic field at this point. So this question that we will do now, ये question previous years JEE में आए थे, so we will try to do that. Yes, I checked your answer, it was right. So we will do this previous year question based on this what we did. So let's say ये हमारा है y axis, ये है हमारा x axis. So basically this is xy plane. Okay, answer of the previous one, mu naught I by 2a 1/pi plus 1/4. ओके, अच्छा ये जो एक्स वाई मैं ऐसे बनाया, इसका मतलब है कि आई हैव गिवन यू द आइडिया कि एक्स वाई प्लेन जो है, दैट प्लेन इज ऑन दिस computer screen. Okay, so in exam it will be mentioned on the paper. Okay, now we have a wire, इससे बना दिया एक ऐसे है, and we also have z axis given. तो ये वायर so like this we have the wire. अब यहां से भी ये भी फिर पैरेलल होंगे, राइट? और ये वायर इनफाइनाइट पर एक्सटेंड हो रहा है, एंड लेट अस से जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये दोनों वायर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं. सो दिस इज z एक्सिस दैट इज मेंशन. यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, जहां से कि ये है a डिस्टेंस पे, मतलब इसका रेडियस a डिस्टेंस पे मान सकते हैं. तो जो भी मैंने वर्डिंग्स में बताया वो टेक्स्ट में मेंशन है. सो यू हैव टू फाइंड magnetic field at point O as shown. So just give me the magnitude of magnetic field, है ना? तो वेक्टर्स में नो नीड, अगर वेक्टर में आते हैं तो बस मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे. सभी कोई करेंगे इसको ट्राई.
तो मोहम्मद KI/A रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। चलो ठीक है। हाँ, वेक्टर में ही मिलेगा, क्योंकि वायर वन के वजह से जो होगा, ये वायर वन किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा माइनस वाई डायरेक्शन में, राइट। क्योंकि ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड वायर्स के अराउंड कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ये इसके रेस्पेक्ट में मैंने ड्रॉ किया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा। तो नाम दे देते हैं, ये वायर वन, दिस इज वायर टू, ये वायर थ्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, तो म्यू नॉट I/4 पाई A माइनस जे कैप, राइट। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर थ्री क्या होगा, देखो, ये भी सेमी इनफाइनाइट हो गया, बट इस केस में द डायरेक्शन विल बी द सेम, माइनस जे कैप। तो माइनस म्यू नॉट I/4 पाई A जे कैप, and the magnetic field due to सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग माइनस के कैप, राइट। इस पॉइंट के हिसाब से देखो, सो जस्ट पुट योर थंब हियर, यू विल सी द कर्ल्ड फिंगर इज गोइंग इनटू, है ना। तो ये के एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो उधर माइनस जेड एक्सिस होगा, तो दैट विल बी माइनस के कैप, and the magnitude will be mu naught I by 4A, mu naught I by 4A and minus k cap। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबके सबको ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, तो दिस विल बी माइनस म्यू नॉट I by 2 into म्यू नॉट I by 4 pi A जे कैप माइनस म्यू नॉट I by 4A k cap, right। So if we talk about the magnitude, magnitude क्या हो जाएगा, because the question is to get the magnitude of magnetic field, तो अंडर रूट this square plus this square, 2 times म्यू नॉट I by 4 pi A whole square plus म्यू नॉट I by 4A whole square। तो जो कॉमन है म्यू नॉट I by 4A रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4/पाई² प्लस 1। क्या ये मिलेगा, म्यू नॉट, हाँ, ये समझ में आया सभी को। ओके, फाइनल आंसर ये रहा, क्या मिला, म्यू नॉट I by 4A रूट ऑफ 4/पाई² प्लस 1। okay, so let's say we have a circular wire
और इस पे ये दो तरह के सेक्शन बना देते हैं। सो लेट अस से नाउ करंट इज गोइंग, तो एक तरफ से जा रहा है ये, बस इसमें दिखाया गया है कि इधर से आई जा रहा है और इधर से आई आ रहा है। लेट अस से द रेडियस इज आर, और ये जो एंगल है, जिस एंगल पे ये दो स्ट्रेट वायर रखे हैं, that is at an angle theta at the center, radius assuming it to be r. So here we have to find magnetic field at O. Find magnetic field at O. The magnitude, of course. So quickly we will do this. I by 2 कैसे डिवाइड होगा? ये तो छोटा वायर है ना, ये बड़ा वायर है। वायर के मटेरियल सेम है, मतलब करंट जो डिवाइड होगा वो दैट विल डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, तो ऑफ कोर्स इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट इवनली डिवाइड नहीं होगा, I by 2 नहीं होगा। ये कंसिडर करना होगा कि ये I2 है और ये I3 है, तो इधर ये कितना होगा, I3 और I2 मिलके I करंट निकलेगा। क्या ये वायर को अगर हम, इफ वी नेम दिस 1, ये नेम देते हैं लेट अस से 2, ये देते हैं 3, ये सेक्शन मतलब 3, ये सेक्शन 4। क्या वायर 1 और वायर 4 के वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं होगा। रीजन इज, ये पॉइंट फिर देखो इसके इस पॉइंट इस वायर के एक्सिस पे है, so there will be no magnetic field due to these two wires. तो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होंगे? वायर 3 और वायर 4 की वजह से। तो वायर 3 के वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? और वायर वायर 2 के वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जस्ट ऐड देम वेक्टोरियली। तो पहले वायर 2 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा इनटू, वायर 1 के वजह से, वायर 3 के वजह से जो होगा वो होगा आउट, राइट? तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से ज्यादा होगा? आर तो सेम है, सो इट विल डिपेंड अपॉन आई, जिधर से आई ज्यादा है तो 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, राइट? सो वी विल डू नेट मैग्नेटिक फील्ड एज B2 माइनस B3। तो B2 हमें कितना मिल रहा है? वी विल गेट B2 एंगल के रेस्पेक्ट में देखें। अच्छा पहले B3 निकाल देते हैं, देखो B3 क्या होगा? B3 के लिए ये वायर है, मतलब एंगल कितना बन रहा है? थीटा। सो म्यू नॉट, करंट कितना है? I2/2R, R टाइम्स θ/2π। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 3, सेगमेंट 3। ड्यू टू वायर 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट I3/2R, एंगल कितना होगा अब? 2π माइनस थीटा, राइट? 2π माइनस थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट अस सी द फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनता है। B2 म्यू नॉट I3/2R, 2π माइनस थीटा बाई 2π माइनस B3
मतलब म्यू नॉट I2/2r times theta/2 pi. So if we take the things common here, mu naught by 4 pi r 2 pi minus theta I3 minus theta I2. So it is almost impossible to find out without I1 and I3 being given to us. तो ये जितनों को आंसर मिला वो सही है। थोड़ा सा इसको और अगर मॉडिफाई करना चाहें तो we can modify I1 and I2 only based on the given constraints. ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। कंसिडरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप, okay. So now we will move to the next section जहां पर कि हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप। लेट्स राइट दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू loop on the axis. Magnetic field due to the loop on the axis of the loop. So it will be better if I get the diagram. ओके तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। क्या क्या गिवन है यहाँ पर? ये एक लूप है, राइट? दिस इज अ लूप एंड वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। करंट का डायरेक्शन क्या है? अगर हम इस पॉइंट से देख रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह कुछ घूम रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो लाइन है दैट्स गोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट x। तो इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर बताओ? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग टुवर्ड्स अस, राइट? क्योंकि लूप ऐसा रखा हुआ है तो यहाँ पे करंट एलिमेंट है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स अस। तो करंट एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट एंड द डिस्टेंस वी आर कंसिडरिंग 90 डिग्री। तो इसके वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट, करंट लेटर से आई है, म्यू नॉट आई, के टर्म्स लेते के आई डी एल साइन 90। साइन 90 1 हो जाएगा, वील जस्ट फॉरगेट दैट, क्योंकि एंगल जो थीटा होता था दैट वाज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट? So I have named this is r, this is the radius of the loop and this is x, जिस डिस्टेंस पे हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। So we are finding magnetic field at this point. So this point is on the axis of the loop. अच्छा, अब डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? जस्ट अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसको क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज किया तो डीएल क्रॉस आर। तो डीएल वेक्टर देखो टुवर्ड्स अस, आर वेक्टर देखो इट्स गोइंग डाउन, राइट? आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, डीएल वेक्टर हमारी तरफ आ रहा है। तो डीएल क्रॉस आर करना है, मतलब ऐसे डायरेक्शन में जाना है। तो उधर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो डी बी कॉस थीटा
और इधर होगा dB sin थीटा। तो वैसे ही एक अपोजिट करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा उसका होगा फिर से dB sin थीटा और dB cos थीटा। तो दिस कंपोनेंट विल कैंसल आउट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस कंपोनेंट की वजह से होगा, वेयर बाय दिस इज द एंगल थीटा। क्योंकि जैसे जैसे लूप बढ़ेगा वैसे वैसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, राइट, लाइक दिस। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हुआ, dB sin थीटा। इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ dB। थीटा याद रखना, व्हाट इज दिस थीटा, थीटा हम मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लूप के एंड पॉइंट्स को, मतलब किसी करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, राइट। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ dB हियर, क्या मिलेगा, KI dl by r square sin थीटा एंड इंटीग्रेशन। तो जो जो कांस्टेंट है वो सब हम बाहर ले लेंगे। तो क्या क्या कांस्टेंट है, साइन थीटा के जगह पे हम रखेंगे, ऑफ कोर्स जो चीज पता है हमें वो यहाँ पर पुट करेंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, r बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो दैट विल बी, जो कांस्टेंट है वो क्या क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, तो ये आर ही हो गया। इंटीग्रल डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटू 2 पाई आर, सो के आई आर बाय ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, क्योंकि हमें एक्स के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड पुट करना है, इंटू 2 पाई आर। और के का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई। So let us simplify. We will get magnetic field as mu naught I r square by 2 times r square plus x square raised to 3/2. Let's just check this once. Okay, this is correct. तो ये इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है, yes, so especially when we will read magnetism and matter, तब आप देखेंगे how close relationship we have based on electrostatics formula and magnetic fields formula, है ना। फॉर नाउ यू कैन जस्ट कीप कलेक्टिंग कि अच्छा ये कुछ हो सकता है, रिलेशन कुछ हो सकता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड at a distance x, this is magnetic field at a distance x on the axis of current carrying loop, on the axis of current carrying loop of radius r unit. Okay, so it is expected to remember this one. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन लूप्स, तो उसमें बस हम एन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्लियर है सभी को, I'll share this note right after the class. तो इसका ग्राफ कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, this graph we will remember because this is quite complicated to even differentiate and कर सकते हो differentiate, but
जनरली हम याद कर लेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर, ताकि हमें पता चले एक्सिस ऑफ द लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस क्या होगा। तो दिस विल बी वन ग्राफ। अच्छा, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में वैसा ही सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल बना सकते हो लाइक दिस। और इसी चीज को चलो मॉडिफाई करते हैं। ये जो फॉर्मूला मिला ना, इसको मॉडिफाई करेंगे। अगर मैं पुट कर दूं x इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया है ऑन द एक्सिस, वहां पे अगर x 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो लेट अस पुट x इक्वल टू 0, वी गेट b एज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर। और यही एक्सप्रेशन तो हमने निकाले थे, राइट, बिकॉज बोथ आर एग्जैक्टली सेम। ये बात करें या फिर डायरेक्टली हम बीच में बायोट सावर्ट्स लॉ लगा दे, दैट सेम, क्योंकि ये भी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है दैट आल्सो इज विद द हेल्प ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। अच्छा, एक और केस देख लेते हैं। यहाँ पे जब x को हमने 0 या फिर x टेंडिंग टू 0 पे, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, कोर्स 0, राइट, मैग्नेटिक फील्ड विल टेंड टू 0। ये x इंफिनिटी हो जा रहा है तो ये पूरा तो इंफिनिटी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो गया, मतलब कि वो वैल्यू या फैक्टर 0 हो गया। Graph is about variation between magnetic field and the distance from the center of the loop. Just a small question we have here. So let us do this one. जल्दी जल्दी ये करेंगे।
You can directly use the equation if it is possible. Okay, एक आंसर मिला मुझे. Everyone will get. जल्दी से सभी कोई करेंगे. This is a very direct question. So what is given here? A circular coil of wire has 100 turns of radius 8 centimeter, carrying a current of 0.4 amps in clockwise direction. When viewed from the right side, so you have to find out the magnitude and the direction of the magnetic field. पहले तो at the center of the coil, and number 2 at a distance 20 from the center of the coil towards the right and normal to the coil. मतलब कि ये this is the question about magnetic field at the axis. तो फर्स्ट वाला का एक्सप्रेशन क्या यूज करेंगे? एट द सेंटर पे क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r. तो नंबर 1 म्यू नॉट आई बाई 2r. तो मैं पाई और पाई मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 पाई. तो 2 पाई इंटू आई इंटू के बाय आर. ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n हो गया. So let's put the values here. k का वैल्यू क्या है? 10 टू पावर माइनस 7. i का वैल्यू क्या है? 0.4. 2 इंटू पाई, 2 इंटू 3.14 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 100 divided by the radius, that is 8 centimeter. So 0.08, that is 8 into 10 to power minus 2. तो ये देखें, 0.4 इंटू 2 हो गया 8.8. 0.8 बाय 8 किया हमने, तो नीचे आ गया 10, और ये हो गया 10 टू पावर माइनस 1, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 6. तो 3.14 into 10 to power minus 4, and unit will be Tesla. Okay, number 1, that's very much clear. Number 2, you have to find magnetic field at a distance 20. तो उसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर.
So if we put all the values like what we did here, in this case, we are going to get 3.2 into 10 to power minus 5 टेस्ला. इस क्वेश्चन में किन्हीं को डाउट है? कोई डाउट नहीं है इसमें? So I assume everyone has understood this one. Okay, so mainly what we saw today, so we saw how to find out magnetic field at the center. And what was the magnetic field at the center? Mu naught I by 2r. ये कैसे निकाला? Biot-Savart's law dB is equal to ki dl sin 90 by r square. dl क्या हो जाता था? 2 pi r. You can see how efficient this derivation is. k के जगह mu naught by 4 pi और ये कट के बन गया 2. तो mu naught I by 2r. इसी के हेल्प से हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल एट द सेंटर. फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ क्वार्टर ऑफ द सर्कल again at the center. Then we saw magnetic field due to a loop of wire on the axis of the loop. So on the axis of the loop, magnetic field, what we got? Mu naught I r square by 2 r square plus x square raised to 3 by 2. And here only we just put the value of x as 0 to get the magnetic field at the center which we found. When we put x as infinite or x when it tends to infinite or greater value, magnetic field is 0 in that case. It decreases to such lesser extent it is 0. Okay, and one more important point, that if we have a line or a wire carrying current I, magnetic field will only exist around it in a particular order, but not on the axis of this wire. Okay. So any doubt any one of you is having, you can let me know. In the next class, we will first discuss 18.1 and then we will move ahead with Ampere's circuital law. So next class, we are 100% sure we are going to discuss this. So those who didn't do today, take your time and do this 18.1. All right, then see you all in the next class with all these homeworks done, and do revise the things because we are going to focus on modular questions based on magnetism as well.